اور آسمان کی پیدائش 6 دنوں میں ہوئی۔ یہ حوالہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ 6 دنوں میں مراد یعنی ایک دن اتنی مقدار ہے کیونکہ دن و رات اور آفتاب تو تھے ہی نہیں، اور اتنی مقدار میں پیدا کرنا اتنی مخلوق کی آہستگی اور اطمینان کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ یہ حوالہ خزائن العرفان صفحہ 19/3 سے لیا گیا ہے۔ زمین اور آسمان میں سب سے پہلے کس کی پیدائش ہوئی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے زمین کی پیدائش ہوئی، پھر آسمان کی، البتہ زمین کی درستگی وغیرہ بعد میں ہوئی۔ زمین سے پہلے پانی تھا، قدرت نے اس پر جھاگ پیدا کی ہے۔ یہ جھاگ 40 سال تک ایک جگہ محفوظ رہی، پھر وہی جھاگ پھیلا دیے گئے۔ انہیں پھیلے ہوئے جھاگوں کا نام زمین ہے۔ ان جھاگوں کی پیدائش آسمانوں کی پیدائش سے پہلے ہے اور ان کا پھیلاؤ اس کے بعد ہے۔ یہ حوالہ تفسیر نعیمی صفحہ 4/18 سے لیا گیا ہے۔ زمین کس چیز پر قائم ہے؟ جیسا کہ ایک روایت میں جانوروں کے بیان میں آ رہی ہے، اس مچھلی کا نام لوتیا یا موت ہے جس کی پشت پر زمین قائم ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نون نامی ایک مچھلی ہے جو 7 زمین کے نیچے ہے۔ اس مچھلی کی پیٹھ پر ایک چٹان ہے جس کی موٹائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اس پر ایک بیل ہے جس کے 40,000 سینگ ہیں۔ اس کی پیٹھ پر 7 زمین، آسمان اور اس کی تمام مخلوق ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ زمین مچھلی پر ہے، مچھلی پانی میں، پانی صفات پر، صفات فرشتے پر، اور فرشتہ پتھر پر، اور پتھر ہوا پر ہے۔ یہ حوالہ ابن کثیر صفحہ 1/3 سے لیا گیا ہے۔ پانی پر زمین سب سے پہلے کس جگہ بنائی گئی؟ پانی پر زمین سب سے پہلے اس جگہ بنائی گئی جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ یہ حوالہ تفسیر نعیمی صفحہ 1/839 اور جلالین صفحہ 56 سے لیا ہے۔ زمین کا کل پھیلاؤ کتنا ہے اور کتنے حصے میں کون سی مخلوق آباد ہے؟ زمین کا کل پھیلاؤ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس میں 300 حصوں پر پانی ہے اور 190 حصوں پر یاجوج ماجوج آباد ہیں۔ باقی 10 سے 7 میں حبشی لوگ آباد ہیں اور 3 حصوں میں ان کے علاوہ مخلوق ہے۔ یہ حوالہ حاشیہ 7 جلالین 2 سے 5 اور زمر صفحہ 3/55 سے لیا گیا ہے۔ ان پہاڑوں کی تعداد کتنی ہے جو زمین کی پیدائش کے بعد اس کی حرکت کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن پہاڑوں کو پیدا فرمایا ان کی تعداد 17 ہے۔ کوہ کاف، کوہ جودی، کوہ ابوالقیس، کوہ تبنان، کوہ سینین انہی پہاڑوں میں سے ہے۔ یہ حوالہ حاشیہ 16 جلالین 346 اور ساوی صفحہ 21 سے لیا گیا ہے۔ پہاڑوں کی تعداد 441 ہے۔ یہ حوالہ نزہۃ المدارس صفحہ 9/90 سے لیا گیا ہے۔ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر جگہ سے افضل ہے؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल है वो हर जगह से अफजल है। यहाँ तक कि काबा मुअज्जमा और अर्श अजीम और कुर्सी से भी अफजल है। यह हवाला मदारिजुन नबूवत सफ़ा 1/297 और फतवा रिजविया सफ़ा 4/687 से लिया गया है। जमीन का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा बुलंद और आसमान से ज्यादा करीब है? सखराए बैतुल मुक़द्दस यह जमीन का वह हिस्सा है जो सबसे बुलंद और आसमान से सबसे ज्यादा करीब है। इसकी ऊंचाई 18 मील है। यह हवाला हाशिया 5 जलालैन 201 जमल सफ़ा 3/234 और रूहुल बयान सफ़ा 396 से लिया है। यह वही पत्थर है जो शब-ए मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुराक को जिसमें बांधा था और करीब कयामत हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम यहीं से सूर फूकेंगे। जमीन पर कुल कितने पहाड़ हैं? दुनिया में कुल 6673 पहाड़ हैं। ये हवाला तफसीर नईमी सफ़ा 3/90 से लिया गया है। जमीन पर कांटेदार पेड़ कब से पैदा होने लगे जबकि पहले तमाम पेड़ फलदार थे? कत्ले हाबिल से पहले तमाम पेड़ फलदार थे और फल का कोई पेड़ न था। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो बाज पेड़ों पर कांटे पैदा हो गए। समंदर का पानी कब से खारा हुआ जबकि पहले मीठा था? पहले समुद्र का पानी मीठा था, लेकिन जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो समुद्र का पानी खारा हो गया। यह हवाला हाशिया 10 जलालैन 344 से लिया गया है। पहले आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? पहले आसमान का नाम रकी है जो शब्द ज़मुर्रद से बना हुआ है। दूसरे कौल के मुताबिक इसका नाम रकीका है और वह मरबालिक शब्द का बना हुआ है। यह हवाला मारिजुन नबूवत सफ़ा 99/3 से लिया गया है। और तीसरा कौल यह है कि वो ठहरे हुए पानी का है। यह हवाला रूहुल बानी सफ़ा 30/201 से लिया गया है। दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? दूसरे आसमान का नाम अरफलून है। यह सफेद चांदी से बना हुआ है। एक कौल यह है कि वो सफेद मोती का है। यह हवाला रूहुल मानी सफ़ा 30/201 से लिया गया है। और एक कौल यह है कि इस आसमान का नाम कैदुम है और वह सुर्ख सोने से तैयार किया गया है। यह हवाला मारिजुन नबूवत सफ़ा 101/3 से लिया गया है। तीसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? दूसरा कौल यह है कि तीसरे आसमान का नाम ज़बलून है और वो सफेद मरवारिद का बना हुआ है। यह हवाला मदारिजुन नबूवत सफ़ा 3/102 से लिया गया है। और तीसरा कौल यह है कि वह लोहे का है। यह हवाला रूहुल मानी सफ़ा 30/201 से लिया गया है।
चौथे आसमान का नाम क्या है और वह जर्रा अभी से बनाया गया है? एक कौल यह है कि चौथे आसमान का नाम ज़यून है। एक कौल के मुताबिक नुकरा खाम और एक कौल के मुताबिक मरवारिद सफेद से बनाया गया है। यह हवाला मदारिजुन नबूवत सफ़ा 3/103 से लिया गया है। एक कौल यह भी है कि यह आसमान तांबे का है। ये बयान रूहुल मानी सफ़ा 30/201 से लिया गया है। पांचवें आसमान का नाम क्या है और वह किस चीज का बनाया हुआ है? पांचवा आसमान सुर्ख सोने का है और उसका नाम दबका है। यह हवाला रूहुल बयान सफ़ा 1/52 से लिया गया है। एक कौल यह है कि उसका नाम अलब यानी कुन है। यह हवाला मआरिजुन नबूवत सफ़ा 3/106 से लिया गया है और वह चांदी का है। यह हवाला रूहुल मानी सफ़ा 30/201 से लिया गया है। छठे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? छठे आसमान का नाम दफना है जो जर्द याकूत का है। यह हवाला रूहुल बयान 1 से लिया गया है। सातवें आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? सातवें आसमान रोशन नूर से बनाया गया है और उसका नाम अरूबा है। यह हवाला रूहुल बयान सफ़ा 1/60 से लिया गया है। दूसरा कौल यह है कि सातवां आसमान दर्रा सफेद या जोहर सफेद का है और उसका नाम काइल है। और तीसरा कौल यह है कि यह आसमान सफेद जमरूद का है। यह हवाला रूहुल मानी सफ़ा 30/201 से लिया गया है। कितने और किन किन हजरात पर आसमान रोया? हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के कत्ल पर और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के मौके पर आसमान का रोना उसका सुर्ख होना है। यह हवाला इब्न कसीर सफ़ा 25/15 से लिया गया है। अल्लाह ताला ने कितनी बाबरकत चीजें आसमान से जमीन की तरफ उतारी? अल्लाह ताला ने 4 बाबरकत चीजें आसमान से जमीन की तरफ उतारी। 1 लोहा, 2 आग, 3 पानी और 4 नमक। यह हवाला खज़ाइनुल इरफान सफ़ा 27/19 से लिया गया है। जमीन पर नहरों और चश्मों की पैदाइश किस तरह हुई? नहरों और चश्मों की पैदाइश इस तरह हुई कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो जमीन की तरफ वही भेजी कि तुझसे एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जिनको इतायत पर जन्नत और नाफरमानी पर जहन्नम मिलेगी। जमीन ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, क्या तू मुझसे ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जहन्नम में जाएगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ। तो जमीन रोने लगी और इतनी रोई कि उसके रोने से नहरें और चश्मे जारी हो गए और वह कयामत तक जारी रहेंगे। यह हवाला हाशिया सफ़ा 2/5 से लिया गया है। जमीन खुश्क कब से हुई? जबकि पहले तमाम रुए जमीन तर व ताजा थी। कत्ले हाबिल से पहले तमाम दुनिया तर व ताजा थी, लेकिन कत्ल के बाद जमीन खुश्क हो गई। यह हवाला हाशिया 10 जलालुद्दीन 44 से लिया गया है।
उन पेड़ों के नाम क्या हैं और वे कहाँ पाए जाते हैं कि जिनकी तर शाखें आपस में रगड़ने से आग पैदा होती है? ये दोनों अरब में होते हैं और वहीं जंगलों में कसरत से पाए जाते हैं। एक पेड़ का नाम मूर्ख और एक का नाम गफ्फार है। उनकी यह खासियत है कि जब उनकी सब्ज शाखें काटकर एक दूसरे पर रगड़ी जाए तो उनसे आग निकलती है, और बावजूद यह कि वह इतनी तर होती है कि उनसे पानी टपकता होता है। यह वाला खज़ाइनुल इरफान सफ़ा 23/4 से लिया गया है। अर्श आज़म के कितने पर्दे हैं और अर्श के पाए कितने हैं? अर्श आज़म के 6 लाख पर्दे हैं। यह वाला तफसीर नहीं भी सफ़ा 1/278 से लिया गया है और उसके 3,60,000 पाए हैं। यह हवाला नज़रतुल मदारिस सफ़ा 11 से लिया गया है। सिदरतुल मुंतहा क्या चीज़ है? सिदरा बेर का पेड़ है जिसके पत्ते हाथी के कान के बराबर और फल मटके की तरह है। यह वाला जलालैन सफ़ा 229 से लिया गया है। कहते हैं कि उस पेड़ की 3 तरह की सिफतें हैं। एक यह कि साया तवील है, दूसरी यह कि उसका मज़ा लतीफ़ है और तीसरी यह कि उसकी बू लतीफ़ है। यह वाला मदारिजुन नबूवत सफ़ा 1/300 से लिया गया है। सिदरतुल मुंतहा को सिदरतुल मुंतहा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जगह मखलूक के आमाल और उनके उलूम खत्म हो जाते हैं और अम्र इलाही नुज़ुल फरमाता है, अहकाम इलाही हासिल किए जाते हैं, फरिश्ते उसी के पास ठहरते हैं। उससे आगे बढ़ने और वहाँ तजावुज़ करने की किसी में दाव व तमा नहीं है। यही सब रुक जाते हैं। हर वह चीज़ आलम सिफली से ऊपर जाती और हर वह चीज़ आलम अदबी से अज किस्म अवामिल व अहकाम इलाही नुज़ुल फरमाते हैं। उन सब की इंतहा यही है। इसके आगे किसी मखलूक ने तजावुज़ नहीं किया सिवाय सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए उनको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। यह हवाला हाशिया 12 जलालैन सफ़ा 229 और मदारिजुन नबूवत सफ़ा 1/290 से लिया गया है। सिदरतुल मुंतहा किस आसमान पर है? एक रिवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा 6ठे आसमान पर है और एक रिवायत के मुताबिक 7वें आसमान में है। इन दोनों रिवायतों के मुताबिक इस तरह कहते हैं कि उसकी जड़ तो 6ठे आसमान में है और उसकी शाखें 7वें आसमान में है। यह वाला मदारिजुन नबूवत सफ़ा 1/299 से लिया गया है। सिदरतुल मुंतहा की जड़ से कितनी नहरें जारी हैं? सिदरतुल मुंतहा की जड़ से 4 नहरें जारी हैं। एक नील, 2 फरात, 3 सहान, 4 सजान। यह वाला तफसीर अलम नशर सफ़ा 194 से लिया गया है। जमीन पर गुलाब और चमेली के फूल किस तरह पैदा हुए? बाद हदीसों में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक से गुलाबों का फूल पैदा हुआ है। और एक जगह मरवी है कि आपने फरमाया, गुल सफ़ेद यानी चमेली मेरे पसीने से शब मेराज में पैदा हुई, गुल सुर्ख यानी गुलाब जिब्रील अलैहिस्सलाम के पसीने से, और गुल सर्व यानी चंपा बुराक के पसीने से। निज मरवी है कि फरमाया, मेराज से वापसी पर मेरे पसीने का कतरा जमीन पर गिरा तो उससे गुलाब पैदा हुआ। जो कोई मेरी खुशबू सूंघना
चाहे वो गुलाब को सूंघे। एक रिवायत में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरे पसीने का कतरा जमीन पर गिरा तो जमीन हंसी और गुलाब के फूल को उगाया। लेकिन मुहद्दिसीन इन हदीसों को अपने इस्तिलाहों के मुताबिक जो वे रखते हैं कलाम करते हैं। यह वाला मदारिजुन नबूत सफा 1/49 से लिया गया है। जमीन पर सबसे पहला पहाड़ जो कायम किया गया वो मक्का मुकर्रमा का जबल अबू कबीस है, और सबसे पहले जिसने उस पर इमारत बनाई अबू कबीस नामी एक शख्स था। चुनांचे उसी के नाम से इस पहाड़ का नाम यह पड़ गया। यह हवाला नज़रतुल मदारिस सफा 9/111 से लिया गया है। सातों जमीन में से किस जमीन में क्या है? सातों जमीन में से पहली पर तो हम आबाद हैं, दूसरी जमीन हवा का मकसद है, और तीसरी जमीन में ऐसी मखलूक है जिनके चेहरे बनी आदम और मुंह कुत्तों कैसे है और पैर बैलों कैसे, और उनके बाल भेड़ की तरह हैं। हमारी रात उनका दिन है और हमारा दिन उनकी रात। चौथी जमीन में गंधक पत्थर जिनको खुदा ने जहन्नम के लिए पैदा किया है। पांचवी जमीन में दोज़खियों के लिए बिच्छू है। छठी जमीन में कुफार की रूह है, और सातवीं जमीन इब्लिस के लश्कर का ठिकाना है। यह बयान नज़रतुल मदारिस सफा 9/111 से लिया है।